Good morning, class 3 students. Welcome back to online class. Well, I'm your moral value teacher, and today I am welcoming you on third terminal online class. So, students, today we are going to read a new story from our moral value book. So, students, open your moral value book, turn to page number 51, chapter number 9, The Shepherd and the Wolf. Okay? So, through the story, we will learn lying is harmful and people do not trust liars. Okay? Even if they tell the truth. Therefore, we should not lie. Okay? And students, most of you are already know this story, right? But we already know the story, but we forgot the moral. We often use lying. We are lying to the people. So, for a reminder, we are going to read this story once again, hmm? So that uh, we learn the moral. Okay, so गुड मॉर्निंग क्लास 3 स्टूडेंट्स. मैं आप सभी का स्वागत करता हूं थर्ड टर्मिनल ऑनलाइन क्लास में. आज हम लोग मोरल वैल्यू की बुक पढ़ेंगे. तो मेरे साथ खोलिए पेज नंबर 51, चैप्टर नंबर 9, द शेफर्ड एंड द वुल्फ. ये चैप्टर, और आप में से ज्यादातर लोगों को ये स्टोरी पहले से पता होगी. ये स्टोरी है एक शेफर्ड बॉय की और वुल्फ की. आपको पहले से पता होगी. और इस स्टोरी में हम लोग ये चीज सीख रहे हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. हम्म क्योंकि झूठ बोलना जो है वो नुकसानदायक है और लोग हम पर भरोसा नहीं करेंगे. अगर हम हमेशा झूठ बोलेंगे तो, अगर अगर हमने कभी गलती से सच बोल भी दिया ना, तो भी लोग भरोसा नहीं करेंगे. हम्म तो इसीलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. क्योंकि ये स्टोरी हम लोगों ने पहले से पढ़ी हुई है, हम लोग इसके बारे में जानते हैं, फिर भी हम लोग इसका मोरल भूल गए हैं. इससे हमको क्या शिक्षा मिली वो भूल गए. फिर और आज भी हम लोग कई बार झूठ बोलते हैं, राइट? आप झूठ बोलते हैं अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाई बहन, या फिर रिश्तेदार, अंकल आंटी, किसी से, है ना? गलत बात है. तो इस स्टोरी से एक बार फिर से हम लोग अपने माइंड में रिमाइंड करेंगे और झूठ बोलने की जो बुरी आदत है इसको भूलेंगे. तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या नुकसान है झूठ बोलने से और क्या हो सकता है झूठ बोलने से. चलिए शुरू करते हैं फिर आज की स्टोरी. Okay, students, I'm going to read this story, and what you will do, क्या करेंगे आप लोग? राइट, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, रिपीट आफ्टर मी, राइट? Chapter number 9, Shepherd and the Wolf. Chapter number 9, The Shepherd and the Wolf. Repeat after me. Once upon a time, there lived a young shepherd named Peter. He had huge flock of sheep. Every day he would take his sheep to the grasslands for grazing. While the sheep grazed, he played his flute. One day, while the sheep were grazing, a mischievous idea came to his mind. He thought, I'm getting bored. Why not play a prank on the villagers? So he started shouting, Wolf, wolf! A wolf has attacked my sheep. Help, help! Hearing his cries, all the villagers came running to the grassland with big sticks in their hands. However, they were surprised
to see that there was no wolf and the sheep were grazing peacefully. Peter gave a chuckle when he saw and look of surprise on the villagers' face. Sorry, on the villagers' faces. The villagers were very annoyed with Peter's lie and went back home. After a few days, Peter again played his prank. As the sheep were grazing, he started shouting, "Wolf, wolf! Help, help!" Again, all the villagers rushed to the grassland, hearing Peter's cries for help. However, on reaching the grassland, they saw Peter playing the flute and the sheep grazing. There was no sign of any wolf. The villagers got angry this time and scolded Peter. "Peter, if you keep lying this way, no one will trust you." So students, for today's video, we will finish till here. आज की वीडियो के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही दूर पढ़ेंगे एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल रीड ऑन द नेक्स्ट वीडियो लेसन और बचा हुआ भाग जो है वो हम लोग अगली वीडियो लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है? सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द स्टोरी इन हिंदी. मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. सो लिसन केयरफुली. बड़े ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा. एक समय की बात है. वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ यंग शेफर्ड नेम्ड पीटर. और कहीं पर एक चरवाहा रहता था. चरवाहा वो होते हैं जो गाय भेड़ बकरियों को चराते हैं. वो चरवाहा रहता था, इसका नाम था पीटर. He had huge flock of sheep. और उसके पास में भेड़ों का बहुत बड़ा झुंड था. Every day he would take his sheep to the grassland for grazing. और हर दिन वो घास के मैदानों में लेके जाता था अपने भेड़ों को चराने के लिए. While the sheep grazed, he played his flute. और जब भेड़ें चरती रहती थी तो उसके पास कोई काम नहीं रहता था, तो वो करता क्या था? फ्लूट बजाता था. फ्लूट मतलब बांसुरी. तो वो बांसुरी बजाता था. One day while the sheep were grazing, एक दिन जब जब भी भेड़ें जो थी वो चर रही थी, a mischievous idea came to his mind. एक शैतानी भरा आइडिया उसके दिमाग में आया. He thought, I am getting bored. उसने सोचा कि मैं बोर हो रहा हूं. फिर why not play a prank on the villagers. उसने सोचा कि क्यों नहीं एक प्रैंक, एक मजाक किया जाए गांव के लोगों के साथ. So he started shouting. तो इसीलिए वो चिल्लाना शुरू कर दिया. Wolf, wolf, भेड़िया आया, भेड़िया आया. A wolf has attacked my ship. और उसने चिल्लाया, Wolf has attacked my ship. उसने चिल्लाया कि भेड़ों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, मेरी भेड़ों पर, सॉरी भेड़ों नहीं, भेड़िए ने मेरी भेड़ों पर अटैक कर दिया है, उस पे हमला कर दिया है. हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ. Hearing his cries, all the villagers came running to the grassland. और उसकी आवाज सुन करके, उसका रोना सुन करके, उसकी चिल्लाहट सुन करके गांव के सारे लोग या फिर गांव में जो भी लोग थे वो दौड़े उस ग्रासलैंड में पहुंचे, उस घास के मैदान में पहुंचे. With big sticks in their hand. और बड़े बड़े डंडे पकड़ के उनके हाथों में बड़े बड़े डंडे पकड़ के वहां पर पहुंचे. However, they were surprised to see. और वो लोग सरप्राइज हो गए इस चीज को देख करके
that there was no wolf. और वो आश्चर्यचकित हो गए वहां देख करके कि वहां पे कोई भेड़िया है ही नहीं. And the sheep were grazing peacefully. और उन्होंने देखा कि भेड़े जो है वो आराम से शांतिपूर्वक वहां चर रही हैं. Peter gave a chuckle when he saw the looks of surprise on the villager's face. अब पीटर जो था उसकी जो मुस्कान थी मुस्कान जो थी वो थोड़ी इस तरीके की हो गई, मतलब वो मजाक उड़ाने के व्यू से किसी के ऊपर हंसते हैं ना, व्यंग्यात्मक मुस्कान वो दिखाने लगा, मतलब मजाक उड़ा रहा है. हाँ, विलेजर्स के फेस को जब उसने देखा कि वो लोग आश्चर्य से भरे हुए और वो देख रहे हैं कि अरे यहाँ तो भेड़िया है ही नहीं, और इस बात को देख करके जो पीटर था उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई, मजाक उड़ाने वाली मुस्कान. The villagers were very annoyed with Peter's lie and went back home. और जो गांव वाले लोग थे, जो लोग की मदद करने के लिए आए थे, वो उस पे गुस्सा हुए, उसको अच्छा नहीं लगा पीटर के झूठ पर, और फिर वो अपना काम धाम छोड़ करके आए थे, तो इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगा और फिर वो वापस अपने घर लौट गए. आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, पीटर अगेन प्लेड हिज प्रैंक. और पीटर ने फिर से वही प्रैंक, फिर से वही मजाक उसने फिर से किया. एज द शीप्स वेयर ग्रेजिंग ही स्टार्टेड शाउटिंग. और उसने क्या किया, फिर से जब भेड़ें चर रही थी वो फिर से वो चिल्लाने लगा, वोल्फ वोल्फ हेल्प हेल्प, भेड़िया आया, मदद करो मुझे, मदद करो मेरी. Again, all the villagers rushed to the grassland, hearing Peter's cry. और फिर से गांव के सभी लोग या फिर गांव के लोग दौड़ते हुए फिर उसकी आवाज सुन करके दौड़ते हुए उस ग्रासलैंड में पहुंचे, उस घास के मैदान में पहुंचे, और फिर उनके पास में बड़े बड़े डंडे लेकर के दौड़े होंगे वो लोग भी. However, on reaching the grassland, they saw Peter playing the flute. और जब गांव वाले उस घास के मैदान तक वहां तक पहुंचे, उन्होंने देखा कि जो पीटर है वो आराम से फ्लूट बजा रहा है, अपनी बांसुरी बजा रहा है. एंड द शिप ग्रेजिंग, और जो भेड़े हैं वो चर रही हैं. देयर वॉज नो साइन ऑफ एनी वुल्फ, और वहां पे कोई भेड़िए का चिन्ह भी नहीं है, मतलब वहां एकदम आराम से चल रही है. ऐसा तो नहीं कोई भीड़ मर गई है या फिर कुछ इधर उधर भाग रही है, ऐसा कुछ नहीं, आराम से वो लोग चल रहे हैं. द विलेजर्स गॉट वेरी एंग्री. गांव वाले लोग बहुत गुस्सा हो गए. दिस टाइम एंड स्कॉल्डेड पीटर, और इस बार गांव वाले बहुत गुस्सा हुए और उसको डांटा पीटर को कि तुम्हारी यही आदत रही ना पीटर, इफ यू कीप लाइंग दिस वे नो वन विल ट्रस्ट यू. तब उन्होंने डांटा कि पीटर, अगर तुम इसी तरीके से झूठ बोलते रहोगे ना तो तुम पर कोई भरोसा नहीं करेगा. ऐसा बोल करके वो लोग शायद चले गए. सो स्टूडेंट्स, टिल हियर वी फिनिश. आज के दिन हम लोगों ने यहां तक फिनिश किया. एंड द नेक्स्ट वीडियो लेसन वी विल फिनिश रेस्ट ऑफ द स्टोरी. आई होप यू लव द स्टोरी. मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगली वीडियो लेसन में हम लोग बाकी की स्टोरी को भी फिनिश करेंगे. ठीक है? सो let's see your homework. Your homework is question number, yeah, true false. I think no, unscramble the jumble word. This one is your homework. अनस्क्रम्बल करना है जंबल वर्ड को. मेरे ख्याल से आप ये वाला चीज आप आसानी से फिनिश कर लेंगे. किताब में खोजना है, जैसे ये वाला है लायर, है ना, तो आराम से खोज सकते हैं. और क्वेश्चन नंबर 5, ऑड, सर्किल द ऑड वन, ये वाला को भी फिनिश कर लीजिएगा. ठीक है, जो ऑड होगा उस पे सर्कल करना है. सो नाउ व्हाई डोंट वी सी वर्ड मीनिंग, क्यों नहीं हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं. वर्ड मीनिंग याद भी करना है आपको और लिखना भी है. बाय मिस्टेकन इस यहाँ पे ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है, यहाँ पे बड़ी ई होनी चाहिए थी लेकिन बड़ी ई नहीं लगी हुई है, तो
आप इसको सुधार लेंगे, ईमानदार, बड़ी ई लगा के ना। नेक्स्ट इज शेफर्ड, चरवाहा। नेक्स्ट वन इज ग्रेजिंग, चराना। फोर्थ इज प्रैंक, मतलब मजाक। फिफ्थ इज फ्लूट, मतलब बांसुरी। सिक्स्थ इज इग्नोर, उपेक्षित, उपेक्षित। सेवेंथ इज इंजर्ड, घायल। एट्थ इज रेस्क्यू, बचाना। नाइन्थ इज मिस्टेक, मतलब गलती। एंड टेंथ वन इज ट्रस्ट, भरोसा. So this is for all today's students. So keep learning, keep studying, and be safe. Hmm? Thank you for watching. Have a great day.